علیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت آمنہ ٹرسٹ کا مقصد سماج کے ضرورت مند طبقے کی مدد اور طبی سہولیات کو فراہم کرنا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر بہت سارے کام شروع کیے جا چکے ہیں۔ قیام سے ہی گزشتہ عید میلاد النبی کو 100 طلبہ کے لیے یونیفارم کا انتظام کیا گیا تھا۔ درمیان میں ایک غریب بچی کی شادی بھی کرائی گئی۔ ڈاکٹر حامد اقبال صاحب کی صدارت اور ڈاکٹر رئیس احمد رضوی صاحب کی سرپرستی میں حضرت آمنہ ٹرسٹ کے کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کی سرپرستی میں بہت سارے نوجوانوں کو جمع کیا گیا۔ ہمارے امتیاز کرسی سر ہیں، یوسف نوری صاحب ہیں، حامد رضوی ہیں، غلام سرور حبیب سیٹھ کے صاحبزادے اور سلیم بھائی سیزنگ والے، ایسے بہت سارے نوجوان لوگ جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اب تک طبی مراکز 3 قائم کیے جا چکے ہیں، جس کی ہیڈ آفس جو ہے وہ رضا نگر ہائی وے بسم اللہ مسجد کے قریب میں واقع ہے۔ بالے سیٹ کمپاؤنڈ کے پیچھے فاروق اعظم مسجد جو ہے اس کے بازو میں ایک طبی مرکز کا افتتاح ہو چکا ہے، اور اسی طرح مسجد میلاد پاک میں ایک طبی مرکز جو ہے وہ چالو کیا جا چکا ہے۔ اب تک 850 مریضوں کو ہم لوگوں نے مفت دوائیں فراہم کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہزاروں مریضوں تک پہنچے گا۔ اور اس میں ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے مریض جن کو مسلسل دوائیں جو ہے لگتی ہے، مہینے ان کو دوائیں جو ہے وہ لگتی ہے، جیسے شوگر ہے، ہارٹ ہے، ڈائلیسس ہے، تھائرائیڈ ہے، کڈنی، بلڈ پریشر، استھما، آرتھوپیڈک وغیرہ کے جو ہے وہ مریض جو ہے جن کی بہت ساری دقتیں آتی ہے، اسی کے پیش نظر دوائیں 2 زمروں میں جو ہے وہ ہماری تقسیم کا ارادہ ہے۔ پہلا یہ کہ انتہائی ضرورت مند افراد جو ہیں ان کو مفت جو ہے دوائیں فراہم کی جائیں۔ جو انتہائی ضرورت مند افراد ہیں ان کو مفت دوائیں فراہم کی جائے، اور جو معمولی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے رعایتی قیمت پر دوائیں فراہم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اس مقصد میں ہم لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ یوم ولادت کی خوشی اور استقبال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ پریس سے درخواست ہے کہ اس نیک کام کو سماج تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند مریض اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مریضوں کی مدد کے خواہش مند افراد ٹرسٹ کے مشن کا حصہ بن سکیں۔ سماج کی بہتری اور خدمت انسانیت کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے۔ آپ کی مدد سے یہ مشن مزید کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ گزشتہ سال ممبئی رضا اکیڈمی کی معرفت انجمن اسلام میں ایک میٹنگ رکھی گئی، جس میں ملک بھر سے رضا اکیڈمی کے اراکین پہنچے تھے۔ اس وقت الحاج سعید نوری صاحب قبلہ نے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی آمد اور اسے تاریخ ساز بنانے کے لیے کچھ پروگرام ترتیب دیے تھے۔ الحمدللہ اس پر بہت حد تک کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہوتا رہے گا۔ شہر مالیگاؤں میں جیسا کہ غلام فرید صاحب نے بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہم نے 100 مستحق بچوں کو یونیفارم تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ غریب بچی کی شادی کی گئی،
अभी तिब्बी शोबे में जो काम हम शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक हफ्ते में 850 मरीज़ों की तशखीस हुई और उन्हें दवाएं फराहम की गई। और ये टारगेट हमारा हज़ारों नहीं बल्कि लाखों तक का है, और इंशाअल्लाह इसकी पेशबंदी भी हुई है। तिब्बी शोबे में एक बड़ा काम करने का इरादा शहर में है, जिसमें आप तमाम हजरात का ताउन हमें दरकार है। शहर के 3 हिस्सों में तिब्बी मराकिज़ कायम किए गए। इंशाअल्लाह मुसलसल ये तादाद बढ़ेगी। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तिब्बी मरकज़ कायम किया जाएगा और उस बस्ती के लोगों का अहाता किया जाएगा। ख़ास तौर से ऐसे मरीज़ जो माली एतबार से कमज़ोर होने की वजह से महंगी दवाएं नहीं खरीद पाते और वो गैप करते हैं, और उनका मर्ज़ कभी कभी जानलेवा होता है, और दवाओं का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे वो तमाम मरीज़ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और अस्थमा वगैरह के हैं, थायराइड के हैं, ऐसे मरीज़ों को पूरे माह की दवा यकमुश्त में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मुताबिक वो अपनी जो चिट्ठी लाएंगे, उस हिसाब से पूरे महीने की दवाएं हम उनको फराहम करेंगे और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। तो जो मरीज़ 2000, 3000, 5000 की दवाएं महीने की नहीं खरीद पाते थे या मुश्किल से खरीदते थे, उनको इंशाअल्लाह बहुत बड़ा सहारा इस अदारे के ज़रिए हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि इस मिशन में आप हमारा साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मरीज़ों तक हमारा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम मज़ीद और बेहतर अंदाज में काम अंजाम दें। इंशाअल्लाह ऑपरेशन के ताल्लुक़ से भी काम करना है। ख़ास आँखों का ऑपरेशन जो होता है, ये कोशिश की जाएगी। लेंस लगाना, मोतिया का ऑपरेशन करना अदारे की जानिब से। मरीज़ों की इसमें कोई बंदिश नहीं है। मरीज़ अगर 100 आए, 1000 आए या कहीं तक भी पहुँचे, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी हर एक मरीज़ तक दवाएं पहुँचाएं। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ऑपरेशन करें, और इसके लिए मुंबई की मशहूर एक तंजीम है होप्स इंडिया, उसकी भी हमने मदद ली है। उनका बड़ा ताउन है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी मार्फत ये काम हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आए हुए तमाम मुदीरान, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम अरकान को दफ्तर रज़ा अकेडमी पर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त को निकाल करके कौम व मिल्लत के लिए हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दफ्तर रज़ा अकेडमी के ऊपर तशरीफ़ लाए। अभी अभी मुझसे कबल फ़रीद भाई, इम्तियाज़ सर ने बहुत सारी बातें आप लोगों को आमना ट्रस्ट के ताल्लुक़ से बतलाई, जो कि रज़ा अकेडमी के ज़ेर एहतमाम और होप्स इंडिया मुंबई के रूए रवां अलहाज जनाब रिहान साहब की सरपरस्ती में शहर मालेगांव की डॉक्टर हामिद इकबाल की सदारत में ये काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है, और इसका टारगेट बहुत बड़ा है। जैसे आप लोगों ने मुझसे कबल मतलब जो है हमारे बिरादरान से आपने समाअत फरमाया। अभी तो ये इब्तिदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3 मरकज़ का क़याम मालेगांव शहर के अंदर किया है, और वहाँ से मुफ्त में दवाएं तकसीम की जा रही हैं। ख़ास तौर से हमारा फोकस जो है 4 मेडिसिन जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, ता हयात जो है उसको खाना पड़ता है, और इसके शिकार गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है और एस्थमा। ये 4 मेडिसिन मतलब जो है जब तक कि आदमी ज़िंदा रहता है उसको ये दवाएं चलती रहती हैं। उनकी राहत के लिए होप्स इंडिया की मावनत से आमना ट्रस्ट के ज़रिए शहर मालेगांव के अंदर ऐसे मरीज़ों के लिए हम काम करेंगे। और अभी इम्तियाज़ सर ने बताया कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए
जो कि फेगो ऑपरेशन होता है, बगैर टाँके का होता है, उसके अंदर बेहतरीन लेंस लगा करके, वो भी रियायती दर में, और जो पेशेंट्स पेड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम फ्री में मतलब जो ऑपरेशन करके दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम वर्क जो है, ये तमाम जो खिदमात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक कड़ी है। जैसा कि बानवी रज़ा एकेडमी अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कुछ प्रोग्रामात का ऐलान किया था, मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर इस प्रोग्राम का ऐलान किया गया, जिसे 1500 साला जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया। इसके अंदर सबसे पहले जो है घर घर परचम इस्लाम और परचम रिसालत जो है उसको लगाया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता साल हम लोगों ने देखा है कि बिरादरान वतन ने किस तरह से अपने अपने घरों को मतलब जो है झंडों से जो है सजाया था। हम तो ज़्यादा हकदार हैं कि हमारे सरकार की विलादत के सिलसिले में और हमारे मज़हब की उरूज इस्तिक़ात के लिए हम अपने घरों पर जो है परचम रिसालत घर घर जो है वो उसका एहतमाम करें। उसके अलावा एक प्रोग्राम ट्रेसिंग कुरान पाक के ज़रिए ये ट्रेस किया जाने वाला कुरान पाक का नुस्खा होगा, जिस पर आप कलम चलाकर पूरा कुरान पाक तहरीर कर सकते हैं और चाहें तो इसको शाये भी करवा सकते हैं, जो कि कार सवाब और अजर अजीम का बाइस है। ये 30 पारों का ट्रेसिंग कुरान शरीफ रहेगा, अलग अलग पारे इसके अंदर रहेंगे। हम अपने घर में अपने बच्चों को, घर की ख़वातीन को फिर ट्रेसिंग के लिए मतलब जो है वो कुरान शरीफ दे सकते हैं। कोई 1 पारा करे, कोई 2 पारा करे, कोई पूरा 30 कुरान शरीफ मतलब जो है एक बहुत बड़ा मतलब जो है ये कार सवाब का काम है, अजर अजीम का बाइस है कि कुरान पाक का देखना, तिलावत करना, तहरीर करना, शाये करवाने में, दामे दिल में सकने हिस्सा लेना, सब इबादत और अजर व सवाब का काम है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ऊपर हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी अलैहिर्रहमान ने सीरत मुस्तफ़ा नामी किताब नहायत सलेस और सहल ज़बान में सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर उम्दा किताब है। साहब किताब फरमाते हैं कि ये किताब अगरच अपने मौजू के एतबार से बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन बहमदही ताला सीरत नबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रूरी मज़ामीन की एक हद तक जामे है। इस किताब को उर्दू, हिंदी, रोमन और अंग्रेज़ी में शाये की गई है, जिसका हदिया सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपया रखा गया है ताकि इसे घर घर पहुंचाया जा सके और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत पाक से हर मुसलमान जो है वो रोशनास हो। इसके अलावा दरूद शरीफ आप अपने घरों में, फैमिली के साथ, दुकानों में, निजी मजलिसों में और अहबाब के साथ, मोहल्ला के मकतबों में, मसाजिद, मदारिस में, जहाँ कहीं भी फ़र्दन और इज्तिमाई तौर पर जिस तरह भी आपसे मुमकिन हो दरूद शरीफ का विरद करें। हदीस पाक में है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और इसकी 10 खताएँ माफ़ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। और फरमाते हैं क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा है। इसके अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से साल भर हमारे घरों में जो भी बच्चे पैदा हों, इनका पैदाइश के लिए जिन लोगों के यहाँ लड़की की पैदाइश हो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से बरकत व फजीलत हासिल करने के लिए अपने लड़के का नाम मोहम्मद रखें। हदीस पाक में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसका लड़का पैदा हुआ और वो मेरी मोहब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए इसका नाम मोहम्मद रखे, वो और इसका लड़का दोनों बहिश्त में जाएंगे। ये हदीस शरीफ है। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा, इसे अजाब ना दूंगा। और फरमाते हैं कि तुम में से किसी का क्या नुकसान है कि अगर इसके घर में 1 मोहम्मद या 2 मोहम्मद या 3 मोहम्मद हों। सुभान अल्लाह। इसके अलावा लंगर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1500 साला जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कई महीनों से हर पीर और हर इस्लामी महीने की 12 तारीख को लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बम्बई में तकसीम किया जा रहा है। यह सिलसिला शहर मालेगांव के अंदर भी मस्जिद आरिश खलील नूरी, मस्जिद मिलाद पाक और मस्जिद फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जारी व सारी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़। इसके अलावा दुरूद शरीफ की किताबत की नुमाइश
जश्न विलादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कड़ी ये भी है कि दरूद शरीफ की खत्ताती की नुमाइश हो। इस ताल्लुक से बहुत सारे किताबत के फ़नकारों से रब्ता किया गया है कि वो अपने फ़न खत्ताती को उम्दा से उम्दा अंदाज में पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के अंदर इस तरह की एक नुमाइश पेश हो चुकी है। हमारी कोशिश होगी शहर मालेगांव के लेवल के ऊपर भी हम भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ नुमाइश के इनेकाद करेंगे। जब इनका करना रहेगा उसकी तारीख का हम ऐलान मतलब जो पहले से कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा मोहम्मदी डायरी 2025 मोहम्मदी डायरी भी शाये की जाएगी, जिसमें साल रवां का कैलेंडर, इस्लामी मालूमात, एरास बुजुर्गान दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की तारीखें, अकाबिर उलमा इकराम, मुदर्रिस निज़ाम, मुकादिब के मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज होंगे और बहुत सारी चीज़ें भी जो इस्लामी डायरी में होती है सब इसके अंदर दर्ज होगी। ये कुछ प्रोग्रामात थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर शहर मालेगांव के अंदर काम शुरू हो गया है और बाकी जो काम रह गया है इंशाअल्लाह हम उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोग्राम हमारा ये भी था कि स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे दरूद शरीफ मतलब जो है दरूद जुमा वो उनसे लिखवा करके जो सबसे बेहतरीन दरूद शरीफ लिखेगा उसका एक कंपटीशन रखा जाएगा। उसमें मतलब इनाम से उन लोगों को मतलब इनामात दिए जाएंगे और इनामात भी एक अच्छे मतलब बड़े इनामात होंगे। नातिया नातिया मुशायरे का भी आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसी हफ्ते में दफ्तर रज़ा गेट में हो चुका है और इंशाअल्लाह ये 12 महीने तक मतलब जो है नातिया मुशायरा जारी रहेगा। शहर मालेगांव के इस पहले नातिया मुशायरे में 23 के करीब शोरा इकराम ने शिरकत की। इस मुशायरे को तहरीरी शक्ल दी जाएगी और उसकी पूरी किताब जो है शाये की जाएगी और जिन शोरा इकराम ने इसमें हिस्सा लिया है उनको अच्छे इनामात से नवाजा भी जाएगा इंशाअल्लाह। ये चंद मतलब प्रोग्राम थे जो आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। एक जगह फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम और लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। फरमाते हैं कि जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मैं आई हुए तमाम साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर हामिद इकबाल साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है दरअसल जो है ये 1500 साल जश्न विलादत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की मुख्तलिफ तकरीबात और उस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ तफसीलात देने के लिए आप लोगों को मदऊ किया गया है। तिब्बी लाइन से मेडिकल फील्ड से मैं समझता हूँ कि हज़रत आमिना ट्रस्ट जो है पिछले महीनों से जो है कई तिब्बी सेंटर का इफ्तिताह कर चुकी है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों जो है मरीज़ इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ये जो सेंटर खोला गया है जिसकी निस्बत वही 1500 साल जश्न से ताल्लुक़ रखती है, वो एक आम सेंटर नहीं है। यहाँ से बहुत सारे जो मरीज़ जो हैं, जो जिन लोगों के लिए जो है सारी ज़िंदगी जिनको दवाओं की ज़रूरत है, वो उस सेंटर के ज़रिए फ्री जो है मुफ्त दवाओं का एहतमाम किया गया है। आप लोगों के ज़रिए जो है उन मरीज़ों को तफसीलात पहुँच जाए जहाँ पर जो है थायराइड है, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं, शक्कर की बीमारियाँ हैं। इस ताल्लुक़ से जो है इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम हम लोग ने लेकर चल रहे हैं। आगे इंशाअल्लाह और इसकी तफसीलात दी जाएगी कि किस तरीके से हम उन लोगों की मदद करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि जो सीरत मुस्तफ़ा ये किताब जो है इंशाअल्लाह ताला हर घर में जो है हर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसकी जो है हदिया जो रहेगा 100 रुपया। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग इससे भी जो है ये इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है रज़ा एकेडमी के थ्रू या फिर जो है ये इन तंजीमों के ज़रिए जो है यहाँ पर जो रखा जा रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि भाई तमाम स्कूलों में जैसे जो है सीरत का प्रोग्राम होता है, तो इस साल जो है 1500 साल जश्न की निस्बत से जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में तकारीर का प्रोग्राम हो, सीरत पर जो है नातिया मुशायरा हो। जो
اصل میں جو ہے ہمارے بچوں میں جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت جو پیدا کرے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہر وہ شخص، ہر بچہ جو ہے، ہر بچے کے دل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہم کو اجاگر کرنی ہے. اور یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے، ایک یہ اسی کا سلسلہ ہے کہ آج ہم کو پتہ رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. میں اپنی بات اس مختصر اس علامہ اقبال کے اس شعر سے ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.